بیٹا دے دیا۔ جب بیٹا جوان ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہے امتحان آ گیا۔ رات کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اپنی جو ہے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے۔ دوسرے دن خواب دیکھا اپنا جو ہے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر جو ہے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسری رات جب خواب کے اندر دیکھا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، سوچا کہ میری سب سے قیمتی چیز تو میرا بیٹا ہے جو 80-87 سال کی عمر میں ربی حبلی من الصالحین اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس پر کہا، اپنے بیٹے سے صبح بات کی، جا بنیجا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آگے سے بھی تو پیغمبر کا بیٹا تھا، سیدہ ہاجرہ کی گود کے اندر پرورش پانے والا بیٹا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے ابا جان جیسے اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کریں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تیاری ہوتی ہے۔ جب تیاری ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانے لگتے ہیں ذبح کرنے والی جگہ پر، تو شیطان آ کر کہتا ہے، ہاجرہ تجھے پتہ ہے تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس پر سیدہ ہاجرہ نے کہا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کے دل کا ٹکڑا ہے، بیٹا ہے، جہاں مرضی باپ اپنے بیٹے کو لے کر جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہاجرہ تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون باپ ظالم ہے جو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے بیٹے کو ذبح کر کے رکھ دے؟ اس پر کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، شیطان نے کہا۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے بڑی جرت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے، ایک ہی اسماعیل نہیں کئی اسماعیل بھی اللہ ہمیں دے دے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے راستے میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر یہی 3 موقع تھے جن 3 موقعوں پر جو ہے شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہے۔ اللہ نے اس ادا کو بھی، اس طریقے کو بھی حج کا حصہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں، ماں باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہوتا ہے۔ بیٹا اپنا کرتا اتار دیتا ہے، ابا جان یہ میرا کرتا لے جانا، میری ماں کو دے دینا، جب میری ماں کو میری یاد ستایا کرے گی تو کم از کم میری ماں اپنے بیٹے کا کرتا دیکھ کر اس کو تسلی ہو جایا کرے گی۔ اس کے بعد کہا، ابا جان مجھے الٹا لٹانا۔ اس کے بعد کہا، ابا جان اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھنا، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا، کہیں باپ اور بیٹے کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ باپ اور بیٹا تھا۔ کہا، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لینا، کہیں جب آپ ذبح کر رہے ہوں اور آپ کے ذبح کرتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کی وجہ سے، ان کی حرکت کی وجہ سے میرے باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اگر کسی نے آداب سیکھنے ہیں، ماں باپ کا احترام سیکھنا ہے، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے باپ کا احترام یہاں سکھا دیا کہ باپ کا یوں احترام کیا جاتا ہے۔ اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میرے باپ کو میرا ہاتھ جو ہاتھ کا حصہ لگ جائے یا پاؤں کی حرکت لگ جائے، یہ بھی پسند نہ کیا۔ اب جو ہے زمین پر لٹایا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ کے اندر تیز دار چھری ہے، اور اللہ کا جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے، دنیا کے 40 آدمیوں کے برابر ایک اللہ کے پیغمبر اور رسول کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اب اپنے ہاتھ کے اندر چھری ہے، اور نیچے جو ہے معصوم بیٹا ہے، اوپر باپ ہے، نیچے بیٹا ہے۔ باپ چاہتا ہے ذبح کر دوں، بیٹا چاہتا ہے ذبح ہو جاؤں، اور باپ جو ہے وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، نیچے جو اسماعیل ہے وہ بھی اللہ کا ہونے والا پیغمبر ہے۔ اب جو ہے ذبح کر رہے ہیں، تیز دار چھری بھی ہے، پوری زور و طاقت کے ساتھ جو ہے چھری چلاتے ہیں۔ چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ اگر چھری چلتی ہے، اللہ جنت سے ایک دمبا بھیجتا ہے، وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی آنکھ سے پٹی اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا بیٹا تو صحیح سالم کھڑا ہے، اس جو ہاتھ کے اندر چھری تھی پتھر کو مارتے ہیں۔ پیغمبر کی اتنی زیادہ طاقت
जिस पत्थर को छुरी लगती है वो पत्थर पाश पाश हो जाता है। और इस तरह ये तीसरा बड़ा इम्तिहान था जिसके अंदर मेरे रब ने अपने पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह को कामयाब किया और जो है जन्नती दुम्बा ज़िमा हो गया। और यही तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए मुसलमान 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी का अमल पेश करते हैं। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी से सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह कुर्बानी क्या चीज़ है? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम की यह सुन्नत है। अर्ज़ किया अल्लाह के नबी कुर्बानी करने से हमें क्या मिलेगा? फरमाया हर बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। सहाबा ने कि अल्लाह के नबी अगर जानवर के जिस्म पर बाल की बजाय ऊन हो फिर क्या मिलेगा? फरमाया फिर भी हर बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा उठ खड़ी हो जा अपने कुर्बानी के जानवर के करीब। और जब कुर्बानी के जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा किया जाता है उसका पहला कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता। कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं है। इंसान 100 अमल करता रहे, ज़िक्र अज़कार करता रहे, नमाज़ें पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, सदका खैरात करता रहे, लेकिन इस दिन के अंदर खून बहाने से कुर्बानी करने से अफजल कोई अमल नहीं है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों अपनी कुर्बानी के जानवरों को खिला पिलाकर खूब मोटा किया करो, ये पुल-ए-सिरात पर तुम्हारी सवारियां हैं। और फरमाया जिसके पास ताकत है, जो साहब नसाब है, उसके बावजूद भी हीले बहाने करता है, कुर्बानी नहीं करता, उसको चाहिए ईदगाह के अंदर नमाज के लिए ना आए। कुर्बानी वाजिब किस पर है? वाजिब का छोड़ने वाजिब के ताकीद जो होती है, जो वईद होती है, वो वाजिब पर होती है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिसके पास 7 तोले सोना है या 52 तोले चांदी है या इसके बराबर नकदी रुपया पैसा है या माल तजारत है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। या इसको यूँ समझे, अगर किसी के घर के अंदर 52 तोले चांदी के बराबर ज़रूरत से ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, उसका मालिक चाहे मर्द है चाहे औरत है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। या इसको और आसान लफ्ज़ों में यूँ समझो, अगर किसी के पास 52 तोले चांदी की कीमत तकरीबन 65 या 70 हज़ार के लगभग है इन दिनों के अंदर, अगर किसी के घर के अंदर 70 हज़ार का सामान ज़रूरत से ज़ायद है, चाहे वो सोना है, चांदी है, नकदी रुपया पैसा है, माल तजारत है, चाहे रज़ाइयाँ हैं, कंबल है या बर्तन है, ज़रूरत से ज़ायद जितना भी सामान है उसकी कैलकुलेशन करके जो उसका मालिक है, चाहे बीवी है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे जो है जो भी है, वो अब जो है कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में करेगा। कुर्बानी का मकसद ये नहीं कि हमने 50 हज़ार का बकरा ही अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना है। अगर किसी का नसाब पूरा हो रहा है, उसके बावजूद उसके पास पैसे थोड़े हैं, वो किसी बछड़े के अंदर अपना हिस्सा मिला ले, अल्लाह जो है नियतों के मुताबिक ही उसको अजर व सवाब अता फरमा देगा। उसके अजर व सवाब के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये 10 ज़िलहज्जा को मुसलमान कुर्बानी करते हैं। तो जब ज़िलहज्जा का चांद नज़र आने से पहले जिसने भी कुर्बानी करनी है वो अपने जो है जिस्म की सफाई करे, अपने नाखून वगैरह जो है बाल वगैरह जो है वो कटवा ले। उसके बाद 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करने के बाद जो है दोबारा अपने नाखून और बाल वगैरह कटवाए। ये जो है इस दौरानिए के अंदर अपने नाखून और बाल वगैरह ना कटवाए। फिर इसके साथ साथ जो मुसलमान कुर्बानी करते हैं उनके लिए मेरा रब आसानी पैदा कर देता है। इरादा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर किसी के पास ताकत नहीं भी है, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह असबाब पैदा करने वाला है। फिर जो 10 ज़िलहज्जा का दिन आएगा, ज़िलहज्जा का पहला अशरा, इसकी इतनी अजमत और फजीलत कि हम मुसलमान बस गफलत के अंदर जो है दिन गुजार देते हैं कि जिस ज़िलहज्जे के अंदर मुसलमान पूरी दुनिया से हज के लिए जा रहे होते हैं, अरकान हज अदा कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ज़िलहज्जा के पहले अशरे को मेरे रब ने बड़ी फजीलत अता की है कि इसके अंदर जो बंदा एक रोज़ा रखता है,
मेरा रब उस बंदे को साल के रोज़ों के बराबर अजर व सवाब अता फरमाता है। यकम ज़िलहज्जा से 8 ज़िलहज्जा तक एक रोज़े के बदले 1 साल के रोज़ों के बराबर अजर व सवाब है। और जो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है, मेरा रब उस बंदे को 2 सालों के रोज़ों के बराबर अजर व सवाब अता फरमा देता है। यह कितनी अज़मत और फजीलत की बात है। मेरा रब तो अपने गुनाहगार बंदों को माफ़ करना चाहता है। और हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले की मानंद है। कितने लोग अचानक हार्ट अटैक से दुनिया से जा रहे हैं, कितने लोगों के हम जनाजे पढ़ रहे हैं, कितने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, वालिदैन को, अजीज़ो अकारब को अपने ही हाथों से कंधों पर उठाया, अपने ही हाथों से मनो मट्टी के कब्र के सपुर्द कर दिया। वो वक़्त बयान करीब है, हमने भी मौत का जाम पीना है। किसी को क्या पता कि कब मौत आ जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए अक्लमंदी इसी में है, इंसान संभल संभल कर चले, इत्तबा सुन्नत को अपनाए, पैगंबर के एक एक तरीके को अपनाए, अपनी ज़िंदगी को आर्जी समझे। यह दुनिया की धूप क्या चीज़ है। कहते हैं गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, बढ़ापा है, कमज़ोरी है, बीमारी है। मेरा रब सब कुछ जानता है। अगर कमज़ोर बंदा है जो कमर झुकी हुई है, जब झुकी हुई कमर के साथ एक बंदा अल्लाह के घर के अंदर आता है, मेरा रब उसको कई गुना ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। एक बंदा बीमारी के बावजूद सजदा करता है, मेरा रब उससे राज़ी हो जाता है। क्या ये गर्मी, हम ये दुनिया की गर्मी, क़यामत की गर्मी तो इससे 70 गुना ज़्यादा होगी, 70 गुना ज़्यादा होगी। ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिरत की गर्मी, जहन्नम की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा आज हमारे पास वक़्त है, सांसें चल रही है, या जितनी भी सांसें चल रही हैं, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना, सुबहान अल्लाह का कहना पूरी दुनिया की बादशाह से कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर है। हम फिर दुनिया के पीछे क्यों लगे हुए हैं, जब अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना पूरी दुनिया की बादशाह से बेहतर है। हम अपने अल्लाह को राज़ी करें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को उसके लिए उतना ही करें जितना इस दुनिया के अंदर रहना है। किसी इंसान को कुछ पता नहीं होता, पूरे साल की ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान हमारे पास होता है। फिर लालच किस चीज़ की है, फिर जो है शरीयत को छोड़ना किस चीज़ का, नमाज़ों को क़ज़ा करना किस चीज़ का। इंसान ने धोखे के अंदर डाल दिया, अगले साल कुर्बानी कर लेना, अगले साल 2 जानवर ज़िबा कर लेना, अगले साल 2 हिस्से डाल लेना। अब मेरे नबी ने तो अपनी तरफ से भी कुर्बानी की और अपनी गुनाहगार उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी की। क्या आज उम्मत के गुनाहगार अपनी तरफ से जहाँ कुर्बानी करते हैं, क्या अपने नबी के नाम की कुर्बानी नहीं कर सकते, सहाबा के नाम की कुर्बानी नहीं कर सकते? या वो मुसलमान जो अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, वो माँ बाप जिन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, कल तुम्हारी परवरिश की, आज मनो मट्टी के नीचे पहुँच चुके हैं। क्या हमारे पास अगर मालो दौलत है, हम अपने माँ बाप की कुर्बानी करें, अब पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करें जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसके बाद अपने माँ बाप की, अजीज़ व अकारब के नाम की कुर्बानी करें, अल्लाह के महबूब के नाम की कुर्बानी करें, सहाबा के नाम की कुर्बानी करें। फिर आए दिन ये बात होती है कुर्बानी करनी किस चीज़ की है। बार बार बताया जा रहा है, ऊँट ऊँटनी की कुर्बानी करनी है, गाय और बैल की कुर्बानी करनी है, भैंस और भैंसे की कुर्बानी करनी है, और दुम्बे और दुम्बी की कुर्बानी करनी है, भेड़ की करनी है, बकरा बकरी की कुर्बानी करनी है, ये इनकी कुर्बानी करनी है। कोई आए दिन रद्दो बदल इसके अंदर नहीं है। उलमाए उम्मत ने, फुकहा कराम ने जो 1400 साल पहले अमल हुआ, उनको जो है उलमा कराम ने उसके मतलब फतवा जारी कर दिए, आज हमारे पास मौजूद है। और ये क़यामत की सुबह तक हमारे लिए मशअल राह है। ये नहीं कि मौसम बदल गया, हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई, अब जो है कुर्बानी भी बदल जाएगी, अब जो है कुर्बानी के जो है मसाइल भी बदल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नमाज 5 वक़्त की नमाज अर्शी तोहफ़ा है। क़यामत की सुबह तक 5 गाना नमाज ही मुसलमान अदा करेंगे। कोई 3 पढ़ता है, कोई 2 पढ़ता है, वो इस्लाम के अंदर नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह हमारे अमल को कबूल फरमाए और इसके लिए जितनी भी कोशिश हो सके कुर्बानी का अमल करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।